My lovely students, welcome to Mathological. This is the fifth session on probability. Start करते हैं session. And if you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries regarding your preparation. The first question of this session is this, and pause the video and try to solve this question. Anita is attempting a quiz. Marking scheme is such that she must attempt each question to move forward, and once she has attempted more than two questions incorrectly, the quiz is over. Odds against her attempting a question correctly are 1:3. Find the probability that she will be able to attempt exactly 6 questions due to this constraint. एक क्विज अटेम्प्ट करिए अनीता. मार्किंग स्कीम इज सच दैट शी मस्ट अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन टू मूव फॉरवर्ड. यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन पे आए तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जैसे ही अटेम्प्ट किया नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देन अटेम्प्ट द सेकंड क्वेश्चन, एंड वंस यू अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन देन थर्ड क्वेश्चन विल बी देयर एंड सो ऑन. ठीक है, एंड द क्विज इज ओवर when she has attempted more than 2 questions incorrectly. यानी कि as soon as she attempts third question incorrect, the quiz will be over. Is that it? So अब गिवन है, मैं odds against her attempting a question correctly are 1:3. against her attempting correctly are 1:3. तो probability क्या होगा उसका? to attempt one question correct. तो probability of attempting one question correctly, odds against क्या है? 1:3. तो जो बाद वाली वैल्यू है ये क्या होगा? ये फेवर में होगा. पहले वाला वैल्यू अगेंस्ट होगा. फेवर में किसके? करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के. तो बाद वाला वैल्यू 3 इज इन फेवर एंड 1 इज अगेंस्ट. यानी कि आउट ऑफ 4 इंस्टेंसेस, इफ शी अटेम्प्ट्स इन 4 इंस्टेंसेस, तो आउट ऑफ 4 दोस 4 इंस्टेंसेस इन 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है, इन 3 अटेम्प्ट्स शी विल बी अटेम्प्टिंग करेक्ट और एक अटेम्प्ट में इनकरेक्ट होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट विल बी 3/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट विल बी 1/4. नाउ find the probability that she will be able to attempt exactly 6 questions due to this constraint. That implies कि 6 questions attempt होते ही the quiz gets over. जैसे ही उसने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, द क्विज गेट्स ओवर, एंड द क्विज गेट्स ओवर व्हेन शी अटेम्प्ट्स मोर देन 2 क्वेश्चंस इनकरेक्टली इन टोटल, ऑब्वियसली. तो मतलब क्या हुआ कि 6th क्वेश्चन इज द थर्ड क्वेश्चन दैट शी अटेम्प्ट्स इनकरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 6, दिस शुड बी द थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्टेड इनकरेक्ट. So there are two things out of this. Definitely question number 6 is attempted incorrectly, and also 2 questions before question number 6 have been attempted incorrectly. अब वो 2 questions कौन से होंगे? कोई भी हो सकते हैं, but out of first 5 questions from question number 1 to 5, 2 are incorrect and question 6 is definitely incorrect. So we need to find a probability for this scenario. Isn't it so? So what should be the probability? So from 1 to 5 we have to select 2 questions that have to be attempted incorrectly. ठीक है, तो 5C2 ways में we can select those 2 questions that have to be attempted incorrectly, 2 incorrect questions multiplied by probability for 1 question incorrect is 1/4. 2 questions are incorrect in first 5, so 1/4 to the power 2, or remaining 3 questions will be correct, 2 incorrect and 3 correct. So for 1 correct probability is 3/4, for 3 correct will be 3/4 whole cube. So this is the probability for first 5 questions such that 2 are incorrect, 3 are correct. और 6th question को incorrect भी करना है, तो multiplied by probability for 6th question being incorrect, that will be equal to 1/4. So this will be our probability for the quiz getting over in exactly 6 questions due to the given constraint. 5C2 is equal to 10 and divided by 4 to the power total कितना आ रहा है? 6 आ रहा है डिनोमिनेटर में, और 4 to the power 6 is 2 to the power 12 which is equal to 4096, और 4 into 1024, और न्यूमरेटर वैल्यू आ रहा है 3 cube which is equal to 27. So 5 into 27, 135 divided by 2048. This should be our answer. 135 divided by 2048, that will be our answer in this question. क्या ये clear है? Is this part clear? So this was a good question, isn't it so? क्या समझ में आया? सारी बातें समझ में आई? फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट कि तुम्हें कहाँ पे डाउट आया, क्या चीज़ क्लियर नहीं हुआ. बट अदरवाइज क्वेश्चन का मोड से अप्रेंडी कहता है कि हमने देखा कि 6th क्वेश्चन मस्ट बी इनकरेक्ट. रिमेनिंग 5 जो इनिशियल 5 क्वेश्चन है, आउट ऑफ दोज इनिशियल 5 क्वेश्चन एक्जैक्टली 2 क्वेश्चन मस्ट बी इनकरेक्ट, बिकॉज थर्ड क्वेश्चन इनकरेक्ट होते ही हमारा क्विज ओवर हो जाता है. तो एक्जैक्टली 2 out of 5 आर इनकरेक्ट, तो रिमेनिंग 3 मस्ट बी करेक्ट इन फर्स्ट 5,
और डेफिनेटली सिक्स्थ क्वेश्चन मस्ट बी इनकरेक्ट। तो सबके लिए प्रोबेबिलिटीज हमने अल्टीमेटली, सिंस ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड इंडिपेंडेंटली, दे कैन बी करेक्ट और इनकरेक्ट इंडिपेंडेंटली, सबकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई किया और नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट दोस 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ फर्स्ट 5 दैट हैव टू बी इनकरेक्ट, उसके लिए 5 से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दैट शुड बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A and B toss a coin such that whose toss lands on the tail first loses the game. Find the probability of A losing the game if B is starting the game. A और B टॉस कर रहे हैं कॉइन को, दे आर टॉसिंग अ कॉइन सच दैट जिसका भी टॉस लैंड करेगा टेल पे वो गेम हार जाएगा। गेम जीतना डिसाइड नहीं हो रहा, बट हारना डिसाइड हो रहा है, और हारने के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा। हारना कैसे डिसाइड हो रहा है? whosoever toss lands on the tail, that person loses the game. And we need to find out the probability of A losing the game if B starts the game. ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा इवन होती है। ठीक है, इधर ए विल बी लूजिंग द गेम और बी विल बी लूजिंग द गेम। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए सच दैट ए इज लूजिंग द गेम, एंड कंडीशन ये भी है दैट बी इज स्टार्टिंग द गेम। और लूजिंग कंडीशनल किस पे है? दैट इफ टॉस लैंड्स ऑन द टेल फर्स्ट, then that person loses the game. So if A is losing the game, then A should be the person, then A's toss lands on the tail first. Isn't it so? और जैसे ही टॉस लैंड करेगा टेल पे वैसे ही ए गेम हार जाएगा। Isn't it so? यानी कि उससे पहले के सारे चांसेस में क्या होगा? हेड आया होगा। उससे पहले के सारे चांसेस में हेड आया होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। अब सिंस बी इज स्टार्टिंग द गेम, तो एक चांस बन सकता है दैट फर्स्ट चांस मिलेगा बी को, देन आफ्टर बी ए विल बी प्लेइंग, एंड बी का आउटकम मस्ट बी हेड, बिकॉज बी को गेम लूज नहीं करना है, गेम लूज करना है ए को, एंड देन ए का चांस कुड बी टेल, और जैसे ही ए का चांस पे टेल आया, ए लूजेज द गेम। तो द गेम इज डिसाइडेड ऑन द फर्स्ट रेमड ऑफ ए, इजंट इट सो? फर्स्ट रेमड ऑफ ए पे डिसाइड हो जाएगा, तो हेड देन टेल, दिस इज द सीक्वेंस, और हेड आया बी का, टेल आया ए का। सेकेंड सिनेरियो कुड बी दैट बी स्टार्टेड द गेम, हेड इज द आउटकम, देन ए प्लेड हिज चांस, ए टॉस्ड हिज कॉइन, और फिर से हेड आ गया। अब हेड आया तो ए लूज तो नहीं किया, अब अगेन बी को चांस मिलेगा, और सिंस बी को हमें गेम हराना नहीं है तो फिर से हेड आएगा, एंड देन अगेन ए विल बी गेटिंग हिज चांस, अब टेल आ गया। जैसे ही टेल आया ए गेम हार गया, बट जरूरी थोड़ी यहाँ पे गेम खत्म, अगेन प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है कि फिर बी खेला, फिर ए आया, और अब थर्ड चांस में ए गेम हारा, यानी कि हेड, देन अगेन हेड, देन अगेन हेड, देन अगेन हेड, तो ए अभी तक हारा नहीं है, बी को हारना नहीं है, तो फिर से हेड आएगा, और फिर फाइनली टेल आया। तो दीज विल बी इनफाइनटली मेनी सिनेरियोज कि फर्स्ट चांस पे ए गेम हारा, सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, फिफ्थ चांस, सिक्स चांस, एंड सो ऑन। सो वी विल बी गेटिंग अ पैटर्न इन दिस। ठीक है, फर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा कि फर्स्ट केस में हमारा ए के फर्स्ट राउंड पे गेम ओवर हो गया, व्हाट बी द प्रोबेबिलिटी? सो बी का हेड आना चाहिए, हेड एंड टेल, सिंस दिस इज अ फेयर कॉइन। बायस कॉइन तो मेंशन नहीं है, फेयर कॉइन है, तो बी जब कॉइन को उछालेगा, कॉइन को टॉस करेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2, और टेल का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगा, तो 1/2 इंटू 1/2, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लूजिंग गेम ऑन द फर्स्ट चांस। सेकंड केस, ठीक है, बिकॉज या तो फर्स्ट वाला सिनेरियो होगा या सेकंड या थर्ड, और यानी एडिशन, तो प्लस कर दो। सेकंड केस में क्या होगा? हेड, देन अगेन हेड विथ प्रोबेबिलिटी 1, देन अगेन हेड, एंड देन फाइनली टेल। प्लस थर्ड केस में 6 चांसेस हुए ना, हेड हेड हेड, 5 हेड्स एंड 1 टेल, 1/2 टू द पावर 6 इन टोटल, एंड सो ऑन। ये पूरा हमारा सीरीज बन रहा है, और इसमें सम क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट टर्म इज 1/2 होल स्क्वायर, बिकॉज ए का सेकंड चांस है, टोटल चांसेस जितने हुए हैं टोटल गेम में, पहले बी देन ए, तो टोटल 2 चांसेस, 1/2 होल स्क्वायर। सेकंड सिनेरियो, जबकि ए अपने सेकंड चांस पे गेम लूज कर रहा है, टोटल 4 चांसेस मिले हैं, 2 बी को, 2 ए को, तो 1/2 टू द पावर 4। थर्ड केस, व्हेन ए इज लूजिंग द गेम ऑन द थर्ड इंस्टेंस, टोटल इंस्टेंसेस मिले हैं 6, ए और बी के मिला के, 3 फॉर बी एंड 3 फॉर ए, 1/2 टू द पावर 6, एंड सो ऑन। नेक्स्ट होगा 1/2 टू द पावर 8, एंड सो ऑन। तो दिस इज अ क्लियर इनफाइनाइट जीपी। सम आ जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म है 1/2 स्क्वायर, और हमारा कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 1/2 स्क्वायर, विच इज 1/4, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, इनफाइनाइट सीरीज 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, so this becomes 1/4 upon 3/4, which is equal to 1/3. The probability of A losing the game, this will be equal to 1 upon 3 in this case. और अगर क्वेश्चन पूछा probability of B losing the game, तो of course this will be, B losing the game will be 1 minus probability of A losing the game, because या तो A lose करेगा या B lose करेगा, तो 1 minus 1/3 which is equal to 2/3। डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे, डायरेक्टली भी B के लिए कैलकुलेट कर सकते थे। B या तो फर्स्ट ही इंस्टेंस पे हार जाएगा, तो 1/2, और ऑन द थर्ड इंस्टेंस इन टोटल, तो 1/2 होल क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 5, एंड सो ऑन। तो रिजल्ट वहाँ पे भी हमारा will be only 2/3, 1/2 upon 1 minus 1/4, and 1/2 by 3/4, that will be equal to 2/3। क्या लॉजिक क्लियर है?
ठीक है। सो ऐसे किसी भी केस में जहाँ पे कि देयर इज अ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स गेम प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि किसी भी या तो फर्स्ट इंस्टेंस पे कोई हारेगा, थर्ड पे हारेगा, फिफ्थ पे हारेगा, सेवंथ पे हारेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने प्लेयर्स हैं, क्या सिनारियो है, क्या कंडीशन है गेम का। बट डेफिनेटली पैटर्न यही रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। क्या ये समझ में आता है? ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड डेफिनेटली एक और चीज़ है, ये देखो जब भी कभी ऐसा गेम दो प्लेयर्स के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो जिस प्लेयर को पहला इंस्टेंस पे चांस मिलेगा, जिस प्लेयर को सबसे पहले चांस मिलेगा, देयर इज ऑलवेज हायर प्रोबेबिलिटी फॉर दैट पर्सन टू डिसाइड द रिजल्ट ऑफ द गेम। अब वो रिजल्ट जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में है लूजिंग द गेम, किसी और क्वेश्चन में होता विनिंग द गेम, तो उस पर्सन के लिए हमेशा हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट रहेगा, क्योंकि सबसे पहला चांस वो ले रहा है, पहला चांस वो ले रहा है। इजंट इट? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेल आने पे गेम लूज करता, तो डेफिनेटली पहले चांस जो ले रहा है उसके पास सबसे पहले खतरा है, सबसे पहले चांस है कि उसी का टेल आ जाएगा। इजंट इट सो? क्योंकि पहला चांस उसको मिला है, फिर सेकंड चांस वाले को तो नेक्स्ट में मौका मिला है। तो क्लियरली यहाँ पे जो सबसे पहले गेम को स्टार्ट करेगा, अगर विनिंग कंडीशन होगा तो उसके विन करने का हायर प्रोबेबिलिटी होगा, अगर लूजिंग कंडीशन होगा तो उसके लूज करने का प्रोबेबिलिटी हमेशा हायर होगा। हायर इंप्लाइज दैट मोर देन 1/2। तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लूजिंग द गेम विल बी इन सच ए कंडीशन, क्योंकि लूज करने का ही कंडीशन है, इन सच ए कंडीशन विल बी ग्रेटर देन 50%, विच इज सो। तो अगर तुम्हारा कभी ऐसा केस है कि जो गेम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी तुम्हारा गलती से 1/2 से लेसर आ रहा है, ठीक है, जबकि कंडीशन हमारा लूजिंग का है, तो लूजिंग वाला प्रोबेबिलिटी 1/2 से लेसर आ रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं तुमने अपने क्वेश्चन में एरर किया है। ठीक है, चांसेस आर कि तुमने अपने एंड पे कोई एरर किया है, बिकॉज सिंपल केस बन रहा है, पहला जिसका चांस है उसके लिए हमेशा हायर प्रोबेबिलिटी होगा उस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करने का जो क्वेश्चन की कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, सो हमेशा ये चीज़ भी एक बाय डिफॉल्ट तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसे केसेस में हायर चांसेस रहेंगे। ओके, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विद दिस लॉजिक, विद दिस अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे की बातें देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। Next one, if two squares are chosen randomly from an 8x8 chessboard, so what is the probability that they share a common side? Two squares are chosen randomly from an 8x8 chessboard, so what is the probability that they share a common side? Okay, तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक 8x8 का चेस बोर्ड, उसके बाद ही पूरा क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा। एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन पीएनसी एज वेल, कि जब भी हमें 8x8 चेस बोर्ड का क्वेश्चन मिलेगा तो तीन तरह के हमारे पास स्क्वायर्स होंगे। वन स्क्वायर विल बी अ कॉर्नर स्क्वायर, isn't it so? One square will be an edge square and one square will be an inside square, that is neither on the corner nor on the edge. और तीनों के लिए डिफरेंट कंडीशंस रहेंगी, उन्हीं को फुलफिल करना है, और फुलफिल करते ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं केस एक कॉर्नर स्क्वायर का। So let us see, this is the corner square that we are concerned with. This is a corner square. और हमें क्या चाहिए? कंडीशन क्वेश्चन का ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे शेयर अ कॉमन साइड, दैट दे शेयर अ कॉमन साइड। तो कॉर्नर स्क्वायर के साथ में कितने कॉमन साइड शेयरिंग स्क्वायर्स हो सकते हैं? इट कुड बी दिस स्क्वायर फॉर एग्जांपल, और दिस स्क्वायर। बेसिकली दो साइड्स हैं हमारे पास, दिस साइड एंड दिस साइड, बिकॉज दो साइड्स तो एक्सपोज्ड है, बाहर है, उन पर तो कोई कॉमन स्क्वायर हो नहीं सकता। तो ओनली टू पॉसिबल केसेस आर देयर फॉर अ कॉर्नर स्क्वायर। अब लेते हैं एक एज स्क्वायर। लेट अस से दिस इज द एज स्क्वायर। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन हैव कॉमन साइड्स? क्योंकि एज स्क्वायर का एक साइड एक्सपोज्ड है, बाहर है, तो डेफिनेटली फॉर रिमेनिंग थ्री साइड्स वी कैन हैव अ कॉमन स्क्वायर। तो दीज थ्री विल बी हैविंग कॉमन स्क्वायर्स। अब जो स्क्वायर हमारा इनसाइड है उसका कोई भी साइड एक्सपोज नहीं है, तो डेफिनेटली उसके चारों के चारों साइड्स पे हमें एक कॉमन स्क्वायर मिल सकता है। देयर विल बी फोर स्क्वायर्स विद कॉमन साइड्स, कॉमन स्क्वायर नहीं, फोर स्क्वायर्स विद कॉमन साइड्स, इजंट इट सो? तो तीन सिनारियोज हो गए हमारे, कॉर्नर स्क्वायर, एज स्क्वायर एंड इनसाइड स्क्वायर। कॉर्नर स्क्वायर्स हमें मिलेंगे कितने? फोर। एंड फॉर ईच कॉर्नर स्क्वायर देयर आर टू कॉमन साइड्स, तो टू सच स्क्वायर्स जो कि एक कॉमन साइड शेयर करेंगे। तो 4 इंटू टू, टोटल केसेस आर 8। फॉर अ एज स्क्वायर, नंबर ऑफ एज स्क्वायर कितने होंगे? 6 ऑन ईच एज, और टोटल एजेस हैं 4, क्योंकि दो तो कॉर्नर पे चले जाएंगे, तो रिमेनिंग 6, तो 6 इंटू 4, दीज आर अवर एज स्क्वायर्स विच इज 24 मल्टीप्लाइड बाई हर एक के लिए 3 स्क्वायर्स आर देयर, तो 72 हो गए फॉर एज स्क्वायर्स। सिमिलरली फॉर इनसाइड स्क्वायर्स, इनसाइड स्क्वायर्स कितने होंगे? 6 क्रॉस 6, 6 ऑन ईच साइड, तो 6 क्रॉस 6 आर अवर इनसाइड स्क्वायर्स, एंड फॉर ईच इनसाइड स्क्वायर देयर आर 4 squares that share a common side, तो 6 into 6 into 4 that is equal to 144 are
केसेस फॉर इनसाइड स्क्वायर. टोटल केसेस देखो 144 प्लस 72 प्लस 8, दैट इज 216 प्लस 8 224. बट जब हमने 224 इंस्टेंसेस लिए हैं तो हमेशा ये ध्यान देना कि यहाँ पे डबल काउंटिंग हुआ है, और सारे केसेस का डबल काउंटिंग हुआ है. क्योंकि जब हमने एक फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमने दो स्क्वायर लिए, दिस स्क्वायर एंड देन दिस स्क्वायर, तो एक बार हमने इस स्क्वायर के लिए इसको काउंट किया होगा और एक बार हमने इस स्क्वायर के लिए इसको काउंट किया होगा, तो ऑल केसेस आर डबल काउंटेड एंड हेंस एक्चुअल नंबर विल बी 224 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 112. तो 112 इंस्टेंसेस आर देयर व्हेन टू स्क्वायर्स शेयर अ कॉमन साइड. और टोटल केसेस कितने बनने वाले हैं? 112 आर फेवरेबल केसेस. Total cases will be selecting any two squares out of 64 squares. So 112 divided by total cases, which is 64 C2. 112 divided by 64 into 63 divided by 2. और 2 से बचा 32, 63 7 का मल्टीपल है 9, 16, 2, तो this becomes 1/18. Answer of this question will be 1/18. That probability that they share a common side will be equal to 1/18, roughly 5 point something %. क्या ये क्लियर है? ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? क्या समझ में आता है? अच्छा, एक रफ एस्टिमेशन जस्ट इन केस हम करते हैं. देखो, देयर आर सम स्क्वायर्स जो कॉर्नर स्क्वायर हैं, दोज आर वेरी लिमिटेड, ओनली 4 इन नंबर. एज स्क्वायर्स आर हायर, दैट इज 24 इन नंबर. इनसाइड स्क्वायर्स आर मैक्सिमम, दैट इज 36 इन नंबर. इजंट इट सो? तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? एज स्क्वायर, कॉर्नर इनसाइड, क्या बोल रहा हूँ मैं, ना तो एज स्क्वायर का सबसे ज्यादा वैल्यू ना कॉर्नर स्क्वायर का, इनसाइड स्क्वायर्स का वैल्यू सबसे ज्यादा है. इजंट इट सो? बिकॉज दोज आर 36 इन नंबर, हाइएस्ट. अब फॉर अ कॉर्नर स्क्वायर देयर आर 2 स्क्वायर्स with a common side. For a edge square there are 3 squares with the common side, and for a inside square there are 4 squares with a common side. तो हाईएस्ट वैल्यू किसका है? इनसाइड स्क्वायर का. और सबसे बड़ा नंबर किसके साथ आ रहा है? वो भी इनसाइड स्क्वायर्स के साथ है, बिकॉज देयर आर 4 स्क्वायर्स विद अ कॉमन साइड. ठीक है, तो एवरेज अगर हम देखें, एक ओवरऑल सिनेरियो देखें, एवरेज देखें, तो फॉर अ स्क्वायर कितना होना चाहिए कॉमन स्क्वायर्स विद अ कॉमन साइड का वैल्यू कितना होना चाहिए? 4 फॉर इनसाइड स्क्वायर, 3 फॉर एज स्क्वायर, 2 फॉर कॉर्नर स्क्वायर. अरे सर, हमारा जो इनसाइड स्क्वायर है दे आर मोर देन हाफ, हाफ से भी ज्यादा है. इजंट इट सो? तो एक जो एवरेज होगा हमारा, अगर तुम कॉर्नर स्क्वायर्स, क्योंकि 4 ही है टोटल, अगर उनकी वैल्यू तुम 3 भी मान लो, 2 की बजाय 3 मान लो फॉर एग्जांपल, तो हमारे लेस देन हाफ स्क्वायर्स हैं अराउंड जिनका की वैल्यू 3 आ रहा है. इजंट इट सो? ऑलमोस्ट जिनके कॉमन साइड स्क्वायर्स का वैल्यू 3 आ रहा है. और फॉर रिमेनिंग मोर देन हाफ या ऑलमोस्ट हाफ, तो क्योंकि हमें पता है कॉर्नर स्क्वायर के लिए एक एक कम है, और यहाँ पे हमारा एक एक ज्यादा है किसके लिए? 36 स्क्वायर्स के लिए. तो 36 स्क्वायर्स के लिए एवरेज इज 4, या 4 कॉमन साइड स्क्वायर्स आ रहे हैं हमारे पास, रिमेनिंग के लिए रफली 3 आ रहे हैं, तो एवरेज हमारा 3.5 समथिंग होगा. ठीक है, ये बस एस्टिमेशन के लिए बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ परफेक्टली लॉजिकल वे, बट यहाँ से तुम अपने आंसर के बहुत करीब पहुंच सकते हो कि तुम्हें पता है कि रफली 3.5 कॉमन साइड स्क्वायर्स हमें मिल रहे हैं फॉर एवरी स्क्वायर. इजंट इट सो? बिल्कुल, अगर एक रफ एस्टिमेशन करना है क्योंकि वैल्यूज हमारी बहुत दूर दूर हो, तो डेफिनेटली हमें पता है कि 3.5 इज अ एवरेज वैल्यू फॉर कॉमन साइड स्क्वायर्स. और अगर हम इन जनरल चूज करें कोई एक स्क्वायर, क्योंकि टोटल 64 स्क्वायर्स हैं, तो अगर हमने एक स्क्वायर चूज किया तो सेकंड स्क्वायर चूज करने के हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 63 ऑप्शंस हैं. तो यानी कि 3.5 हमारे वो वैल्यूज हैं जो कि हमें फेवरेबल कंडीशन देगा. 63 टोटल है, तो दिस शुड बी आवर आंसर, विच कोइंसिडेंटली कम्स आउट टू बी 1/18 ओनली. बट यहाँ से एक आइडिया हमें एक अप्रोक्सीमेट आंसर का मिल जाएगा ऐसे केसेस को कैलकुलेट करके. क्या ये बात समझ पा रहे हो कि अगर तुम्हें एवरेज का बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो उससे तुम डायरेक्टली भी आंसर पे कई बार पहुंच सकते हो. अगर वहां पे चीजें हमारे लिए कैलकुलेशन इंटेंसिव ज्यादा है, तो वहां पे ये अप्रोच भी कई बार किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है. डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे और तुम्हारी प्रैक्टिस पे. ठीक है, बट इस बात को क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो? और अगर समझ पा रहे हो तो कमेंट में मेंशन करना कि तुम्हें ये बात भी समझ में आई. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बट दिस शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. If m and n are two natural numbers less than 10, then we have to find the probability that their sum is a multiple of 4 or 5. Very good question. कि m और n हमारे दो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, डेफिनेटली नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू कैन बी 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू हैज टू बी लेस देन 10, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 9. तो ऑल वैल्यूज ऑफ m and n हैज टू बी बिटवीन 1 and 9. And since both are more than or equal to 1 and less than or equal to 9, तो m plus n का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या होगा? Minimum value will be 1 plus 1, which is equal to 2, and maximum value will be 9 plus 9, which is equal to 18. और अगर इतना क्लियर हो गया तो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डाइस वाले केसेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम सम आ रहा है 2, मैक्सिमम सम आ रहा है 18, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एम और एन का कब मिलेगा? मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज भाई 2 पे तो एक ही केस बनेगा, दैट इज 1 plus 1. 18 पे भी एक ही केस बनेगा, दैट इज 9 plus 9. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कब मिलेगा? जब हम करेंगे 18 plus 2/2 यानी कि 10 पे.
व्हेन m प्लस n इज इक्वल टू 10 दैट विल बी द केस जहां पे कि हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मिलने वाला है, क्योंकि सबसे पहला केस होगा व्हेन m इज मिनिमम n इज मैक्सिमम, यानी 1 प्लस 9, और लास्ट केस मिलेगा व्हेन m इज मैक्सिमम एंड n इज मिनिमम, यानी कि 9 प्लस 1। और इसके बीच के सारे केस मिलने वाले हैं 1 प्लस 9, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 4 प्लस 6, 5 प्लस 5, then 6 plus 4, 7 plus 3, 8 plus 2, and finally 9 plus 1. Total from 1 to 9, 9 cases मिलेंगे, which is the maximum value. Isn't it so? क्या ये बात क्लियर है? और इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा है। जैसे ही तुमने एक एग्जाम्पल निकाल लिया, सबसे एक्सट्रीम वाला एग्जाम्पल 1 प्लस 9, तो तुम्हें पता है 1 से लेकर 9 तक की सारी पॉसिबिलिटीज मिलने वाली हैं, टोटल 9 केसेस मिलने वाले हैं, क्योंकि एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है। वैसा वाला केस एक निकाल लो तो वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि टोटल केसेस कितने मिलने वाले हैं। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्योंकि अगर ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो अब स्ट्रेट अवे इसके बाद में अपने एंड पे तुम्हारे सॉल्व करना आसान है। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, देयर सम इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और 9। सबसे पहले बताओ टोटल केसेस कितने होंगे टोटल। अब m हमारा 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, तो m के लिए हमारे पास केसेस है 9। n भी 1 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, कोई और कंडीशन तो है नहीं कि m और n का कोई और रिलेशन हो कि m शुड बी लेस देन 9 और लेस देन n और समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ भी नहीं है। तो n भी सारी की सारी 9 वैल्यूज ले सकता है। टोटल केसेस आ जाएंगे 9 × 9 दैट इज इक्वल टू 81। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सम जो हमारा होगा m प्लस n दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4 और 5, यानी कि m प्लस n कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 का मल्टीपल है, यानी कि कैन बी 4, कैन बी 8, कैन बी 12, कैन बी 16, 20 नहीं हो सकता बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू 18 आ रहा है। तो दीज 4 आर पॉसिबल केसेस फॉर m प्लस n विच आर मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल 5 क्या हो सकता है, कैन बी 5, कैन बी 10, कैन बी 15, 20 नहीं हो सकता, अगेन बाय द सेम लॉजिक। और कोई भी हमें कॉमन वैल्यू तो मिल नहीं रहा है, कोई भी और कॉमन वैल्यू तो हमें मिल नहीं रहा है। तो यही हमारे पॉसिबल सिनेरियोज होंगे m प्लस n के लिए। अब सबके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो इफ m प्लस n इज इक्वल टू 4, तो मिनिमम एक्सट्रीम केस क्या आएगा 1 प्लस 3। और हमें पता है कि अब 1 से लेकर 3 तक की सारी वैल्यूज ले सकता है m। अगर m को मिनिमम लिया है तो m मैक्सिमम कितना हो सकता है 3 प्लस 1। बीच में हमें एक ये वैल्यू भी मिलेगा, तो 1 से लेकर 3 तक 1 2 3 टोटल 3 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। सिमिलरली इफ m प्लस n इज इक्वल टू 8, एक एक्सट्रीम केस ले लिया 1 प्लस 7, तो 1 से लेकर 7 तक की ये सारी वैल्यूज m लेगा और फिर 7 से लेकर 1 तक करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेगा n, तभी तो सम हमारा आएगा 8। यानी कि 1 से लेकर 7 तक टोटल 7 वैल्यूज 7 सॉल्यूशंस विल बी देयर। फॉर 12 एक्सट्रीम केस ले लो, अगर तुमने m को 1 ले लिया तो फिर n को 11 लेना पड़ेगा, बट n कैन नॉट बी मोर देन 9, तो n मैक्सिमम 9 ले सकता है, तो m को 3 होना पड़ेगा, यानी कि m मिनिमम कैन बी 3 प्लस 9। अब 3 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज लेगा m, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9, अगेन हमें 7 केसेस ही मिलने वाले हैं फॉर 12। और लॉजिक भी समझ में आता है, क्योंकि हमारा देखो मिनिमम मैक्सिमम 2 प्लस 18 का सम कितना था 20 था। तो अगर हमारा सम s के लिए कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो उतना ही हमें 20 माइनस s के लिए भी मिलेगा। तो अगर 4 के लिए हमने सॉल्यूशन निकाले तो 16 के लिए भी 3 ही होंगे, विच इज ऑब्वियस, इजंट इट सो? ठीक है, अगर वैसे भी देखते हो तो 7 प्लस 9 पहला वैल्यू है, और फिर 7 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज लेगा 7 8 9, 3 सॉल्यूशन है पॉसिबल। सिमिलरली फॉर 5 के लिए मिनिमम आएगा 1 प्लस 4, तो 1 से लेकर 4 तक 4 सॉल्यूशंस। 10 के लिए आएगा, 10 तो मैक्सिमम है, अभी ऑलरेडी हमने देख लिया था, 9 वैल्यूज 1 से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज लेगा। और 15 में आ जाएगा हमारा 9 प्लस 6 प्लस 9, तो 6 से 9 तक से लेकर 9 तक की सारी वैल्यूज विच इज इक्वल टू 4 सॉल्यूशंस। क्या ये सारे ये मेथड समझ पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि ये क्वेश्चन जहाँ पे कि हमें हर एक केस में कितने सारे केसेस में हमें टोटल सॉल्यूशंस निकालने थे, पर हमने कितना इजीली इन सारे के सारे सॉल्यूशंस को निकाल लिया सिर्फ इस बेसिस पे कि हमने चीज़ों को समझ लिया आसानी से। क्या ये क्लियर है? अब इनका सम कर लो, वो हमारे फेवरेबल केसेस होंगे सारे के सारे। 3 प्लस 7 इज 10, 10 प्लस 10 इज 20, और फिर 9 प्लस 8 17, तो 20 प्लस 17, ये बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है? 20 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 81, that is 37 upon 81. So our answer for this question, for this case, will be 37 by 81. That should be the answer. क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है। सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, एंड आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा और अप्रिशिएट कर पाए होगे। कमेंट होगा जरूर फीडबैक देना अपना, तुम्हें सेशन कैसा लगा, तुम्हें क्या सारी चीज़ें समझ में आई, या किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल एंड गिव अ फीडबैक अगर सेशन पसंद आया तब भी। एंड ऑल्सो लाइक द सेशन, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस कंटेंट, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड दैट्स ऑल विद दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।